हमने जो जियोडेसिक्स को डिफाइन किया, बेसिकली हमने ये कहा कि ऐसी कर्व्स, अगर मेरे पास कोई सरफेस है उस पे ऐसी कर्व्स जियोडेसिक्स होती हैं जहां का हर पॉइंट पे जो उसका अल्फा डबल, अगर ये अल्फा कर्व है तो ऑफ कोर्स देयर वुड बी अ टेंजेंट वेक्टर, लेट्स कॉल दैट अल्फा डॉट, और उसके परपेंडिकुलर में if I assume that it's a unit speed curve, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सो उसका जो परपेंडिकुलर वेक्टर है अल्फा डॉट, इफ उस कर्व का जो ये अल्फा डबल डॉट है, the acceleration vector कह लो एक तरह से, if it is always perpendicular to the tangent at that point, or it has the same direction as in normal to the surface, then हमने उसका कहा कि इसको हम जियोडेसिक कहेंगे। या फिर अगर अल्फा डबल डॉट जीरो है, यानी इफ द सरफेस इज फ्लैट, और इसका जो एक्सेलरेशन वेक्टर है कर्व का, वो हर पॉइंट पे इट इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट प्लेन एट दैट पॉइंट। सो इसमें अभी तक हमने ये बात की ही नहीं कि दिस वुड बी द शॉर्टेस्ट और द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस, है ना, वो बात तो आई ही नहीं, बट वी विल शो दैट। लेकिन हमने ये दिखा दिया कि अगर ऐसी कोई कर्व है, then along that curves, along all the, for all the points on that curve on the surface, two differential equations must hold, what we call the geodesic equations. And what was that? That was d by dt of eu dot plus fv dot is equal to 1 by 2, what was that, e sub u u dot square plus twice f sub u dot v dot plus g sub u v dot square, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा ऑफ कोर्स d by dt of fu dot plus gv dot must be equal to 1 by 2. So this is what characterizes the geodesics. On all these points, if I evaluate E, F, G, and at any point on a geodesics, these two differential equations must hold. This is it. And if these two equations hold along all the points on a curve, then that curve की ये property होनी चाहिए कि alpha double dot is perpendicular to the tangent plane at that point. So these words जिनको हमने geodesic equations कहा, तो अब हम ये भी दिखाएं कि this is equivalent to the fact that if this happens on all points of a curve, then between those 2 points which join, if a curve is joining a point PQ and these two differential equations are true on that surface, then this must be the shortest distance on that surface between the point P and Q. So वो हमने नहीं किया। उसी से रिलेटेड है हमारा जो बड़ा थ्योरम, उसको जरा हम साइड में रखते हैं। तो उससे पहले एक और चीज जो हमें करनी है, what we call Gauss-Bonnet theorem. Gauss-Bonnet theorem is one of those fundamental theorems in mathematics. मतलब बहुत ही important और गहरा। तो इसके लिए let me first state it. मतलब इसको genuinely appreciate करने के लिए तुम्हें काफी mathematics पढ़नी पड़ेगी, मुझे भी actually। मतलब ना इसको अप्रिशिएट करना कि what does it say and what are its implications वगैरह वगैरह, हमें सिंपली एक स्टेटमेंट करना है इसका और इसकी implications for a geodesic triangle on the surface. तो let me state it, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे. Now it says that for a simply connected portion, of a surface S, of the surface, let me call the surface portion का वही नाम S रखते हैं, S of the surface कुछ भी हो सकती है, for which the Gaussian curvature K, you know what is a Gaussian curvature, or simply curvature, product of the principal curvature at that point, K
is continuous. इसमें काफी सारी टर्म्स हैं जो तुम्हें मतलब हम उनको फोकस करेंगे इसको तो क्या क्या टर्म्स इन्वॉल्व हैं. And the geodesic curvature kg of the contour of its contour of the contour C enclosing the region S क्या मैंने लिखा and the geodesic is continuous. अब ये भी continuous function है, changes continuously as we go on that portion of the surface, and geodesic curvature changes continuously as we go around the contour of that portion of the surface. अगर ये सच है, then the integral C, integral over this contour C, the line integral of the geodesic curvature with respect to S, जो भी तुम्हारा length portion है, plus the double integral over the region S, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका Gaussian curvature K है, that region is equal to 2 pi into Euler characteristic of that region R minus summation I runs from 1 to n theta I, where theta 1, theta 2 up to theta n are exterior angles. मैंने S लिखना चाहिए ऐसे, क्योंकि मैंने लिखा ना Euler characteristic region का नाम मैंने S रखा, तो S ही रखते हैं. ओके, मैं अभी Euler characteristic में इन सभी चीजों को एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा. Are exterior angles if any, क्योंकि हो सकता है कोई जीरो भी इसके कोई एंगल ही ना हो, राउंड कॉन्टूर हो at the vertices of C, हो सकता है ऐसा कोई वर्टेक्स हो ही नहीं. So this is our statement. अब इसमें बहुत सारी चीजें आ गई. Have you heard about the Euler characteristic? किसी ने सुना है Euler characteristic के बारे में? No, sir. So Euler characteristic is one of those what we call topological variants of the surface. You know, it's something topological. It is intrinsic property of a certain space, certain topological space, a certain surface. Just for example, let me first tell you what it is. इसको हम chi से denote करते हैं. Let me start with an example of a triangle. एक triangle है, ठीक है? ट्राइंगल है, दुनिया में सारी सिर्फ ट्राइंगल एग्जिस्ट करता है, बाकी कुछ नहीं है. जब मैं कह रहा हूँ ट्राइंगल, तो ये रीजन है मेरी दुनिया सारी. अब ये जो रीजन है, इसमें अगर मैं देखूं नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने हैं? 3. गुड. V is equal to 3. नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? 3. गुड. नंबर ऑफ फेसेस या कितने ट्राइंगल्स हैं? F is equal to 1. ठीक है ना? Euler characteristic हम डिफाइन करते हैं. So let me again, अगर मैं इसको मैं ट्राइंगल के बजाय स्क्वायर लूं, इस तरह का कोई भी ट्राइंगुलर रीजन, ठीक है? अब मैं इसको ट्राइंगुलेट करता हूं, मतलब मैं इसमें ट्राइंगल्स बनाता हूं. जितने मर्जी उतने ट्राइंगल बना लो, लेकिन वो मतलब जैसे ये फिगर है ना? अब मुझे बता दो इसमें कितने वर्टिसेस हैं? 1 2 3 4 5 ही है. 12 कहां से आ रहे हैं? कोने कितने हैं इसके? 1 2 3 4 5 6, 5 ही है ना? तो 5 ही है मुझे लगता है. हाँ सर, 5 ही. गुड. एजेस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8. एजेस कितने हैं? 8 है ना? साइड्स ऑफ द ट्राइंगल देखो ना, एक साइड है, 2 3 4 5 6 7 ही है. 8 है ना? 8 है ना? 4 ये और 4 अंदर के है ना? 8. हाँ सर. गुड. फेसेस कितने हैं? फेसेस यानी कितने ट्राइंगल्स टोटल? 4. 4.
Now look at this quantity. ये पहले ऑब्जर्व किया था ऑयलर ने, एक बड़े मैथमेटिशियन ने, तो उसने हमें बताया एक चीज है जो चेंज नहीं हुई, हालांकि हमने फिगर को चेंज कर दिया। वो क्या था? वो था, आई डोंट नो, मुझे इसका एग्जैक्ट फॉर्मूला इट इज v माइनस ई प्लस एफ। अब देखो यहाँ पे क्या मुझे मिला, v माइनस ई प्लस एफ किसके बराबर होगा? कैन यू टेल मी? इट्स इक्वल टू 1। यहाँ पे क्या है? v माइनस ई प्लस एफ क्या होगा? वो भी 1 होगा। अब मैं तुम्हें अगर ये बताऊं, तुम कैसे भी इसके ट्रायंगल्स बना दो, फिर ये सब चीज करो, तुम्हें 1 ही मिलेगा। इसको हम बोलते हैं ऑयलर कैरेक्टरिस्टिक। यानी अगर तुम कोई भी इस तरह का पॉलीगन बनाओगे कुछ, उसमें फिर ट्रायंगुलेट करोगे ऐसे ऐसे ट्रायंगल्स, फिर ये अगर ये तुम ये काउंटिंग करोगे ना, तो यू विल ऑलवेज गेट 1। हाँ, अब अगर तुम लोगे इसको एक, मतलब ये जो आउटसाइड ऑफ दिस, मतलब प्लेन में जब पॉलीगन बनेगा तो उसका एक आउटसाइड रहेगा ना, हाँ सर। ये रीजन, अगर तुम उसको एक फेस मानोगे तो ऑफ कोर्स तुम्हें 2 मिलेगा, क्योंकि एक फेस ऐड होगा ना। तो तुम कह सकते हो उस हिसाब से कि ऑयलर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ प्लेन इज 2। प्लेन, नॉट द पॉलीगन, नॉट द ट्रायंगल, है ना। प्लेन का मतलब ये सारा इंक्लूडेड है, और हम ये जो बाहर का जो सारा रीजन है उसको एक फेस मानते हैं। राइट, है ना। इंटरेस्टिंग। जी सर। ओके, नाउ दैट्स कॉल्ड ऑयलर कैरेक्टरिस्टिक। अब हम ये इट्स डिफाइंड फॉर, जैसे फॉर एग्जांपल वी कैन जस्ट चेक, अगर मैं स्फीयर लूं, ठीक है ना, स्फीयर लूं, अब उसको ट्रायंगल्स में डिवाइड करूं, कैसे भी लकीरें दाएं बाएं तिरछी, तो उसको सिर्फ मतलब वो मिलनी चाहिए ना, मतलब ऐसा मतलब नहीं कुछ भी नहीं, मतलब ट्रायंगल्स में अगर उस रीजन को डिवाइड करेंगे, और इसी तरह से मैं निकालूं ऑयलर कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो ऑयलर किसी भी तरह से तुम सिर्फ स्फीयर को ट्रायंगुलेट करोगे तो उसकी ऑयलर कैरेक्टरिस्टिक 2 होगी, स्फीयर की 2 है। इट इज इंट्रिंसिक। अब देखो, लेकिन अगर तुम लोगे से टोरस, टोरस का मतलब टायर की सरफेस, अब उस पे भी हम ट्रायंगुलेशन कर सकते हैं ना, ऐसे ट्रायंगल्स में उसकी सरफेस को डिवाइड करना है, एजेस टेढ़े मेढ़े हो नहीं चलेगा, मतलब, लेकिन वो मिलने चाहिए ना इस तरह से कोनों पे, मतलब ट्रायंगल्स में कुछ बचना नहीं चाहिए सरफेस का, इट शुड बी होलली डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सर्टेन सेट ऑफ ट्रायंगल्स। तो यहाँ पर ऑयलर कैरेक्टरिस्टिक हमेशा 0 है इस सरफेस की। और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि गेस करो, अगर ये टोरस ऐसे होता जिसके 2 छेद हों, मतलब इस तरह का, मतलब इट्स इसको बोलते हैं टोरस विद 2 होल्स, कह लो, मतलब ये टायर ही है, लेकिन कैन यू इमेजिन व्हाट इट इज? जी सर। ओके, तो इसके कितने होंगे ऑयलर कैरेक्टरिस्टिक? अगर हम इसको ट्रायंगुलेट करेंगे तो ये होगा -2, और अगर 3 होल का होगा, व्हाट डू यू थिंक? -4। 2 - 6 is -4। एक्चुअली जितने हम छेद करते जाएंगे ना, इट इज एक्चुअली 2 - 2 जी, जी को बोलते हैं हम जीनस। ये कितने छेद है, और ये छेद होना जो है ना, ये कोई मतलब इट्स नॉट समथिंग ट्रिवियल। मैंने बोला चलो टोरस का देखते हैं, ठीक है। दिस इज अ क्लासिफिकेशन ऑफ दीज कॉम्पैक्ट सरफेसेस दैट आर ओरिएंटेबल। वो इसी टाइप की हो सकती हैं, जो भी कॉम्पैक्ट सरफेस हो सकती है, मतलब सम फॉर्म, सम डिफॉर्म्ड वर्जन ऑफ दीज पर्टिकुलर सरफेसेस। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हैं। इंटरेस्टिंग बातें, जैसे मुझे एक इंटरेस्टिंग बात पता है क्या लगती है, अगर तुम स्फीयर पे हो और सिलेंडर पे हो, नहीं, टोरस पे तुम मान लो अर्थ टोरस है, ठीक है, जी। या स्फीयर है, वी डोंट नो। तो हाउ डू यू नो विदाउट गोइंग आउटसाइड द अर्थ कि हम जहां रह रहे हैं वो टोरस है कि स्फीयर है? सर। देखो,
कुछ लोग कहते हैं कि हम अर्थ को ये वेरीफाई करने के लिए जाएंगे यहाँ से, फिर इस तरह से जाएंगे, अगर ये राउंड है तो हम वापस यहीं पहुंचेंगे, है ना? जी देखिए ये टोरस के लिए भी ट्रू है। हाँ, अगर ऐसे जाएंगे ऐसे भी जाएंगे तो दो तरीके हैं एक्चुअली यहाँ जाने के, है ना? हाँ सर। तो मैं तुम्हें एक सिंपल सा बताता हूँ, इसको हम बोलते हैं सिंपली कनेक्टेडनेस। टोरस में तुम कोई भी लूप ले लो, मतलब कोई भी धागा ले लो ना, विद इन द सरफेस, सरफेस से वो बाहर नहीं, उठाना नहीं है, ये सरफेस में एम्बेडेड है। तुम इसको कंटिन्यूअसली डिफॉर्म कर सकते हो टू अ पॉइंट, कोई भी लूप ले लो, है ना? क्या तुम इमेजिन कर रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तुम हाँ सर। सरफेस पे हो, मैं कह रहा हूँ तुम्हें वो चिपका हुआ है जमीन के साथ, है ना? कोई भी लूप ना, ऐसा धागा ले लो, अगर तुम इसको तंग करते करते तुम कंटिन्यूअसली इसको कर सकते वही। हो टू अ पॉइंट, है ना? कोई भी लूप जी। ले लो जो इसमें चिपका हुआ है सरफेस, है ना? हाँ सर। लेकिन टोरस में ये सच नहीं है। अगर तुमने, तुम्हारा लूप ऐसा है, ऑफ कोर्स तुम अगर इसको टोरस पे टाइट करते करते वो तुम, हो जाएगा। लेकिन अगर ये वाला होगा, इस तरह का कोई लूप, तो तो फंस, नहीं होगा। नहीं तो होगा। नहीं होगा। हम कहते हैं इस प्रॉपर्टी को सिंपली कनेक्टेड। क्या कहते हैं? ये जो स्फीयर है ना, स्फीयर की सरफेस, ये है सिंपली कनेक्टेड, ये नहीं है सिंपली कनेक्टेड। और जैसे तुम एग्जांपल देते हो ना नॉन सिंपली कनेक्टेड का, तुम कहते हो एनुलस, मतलब द रीजन बिटवीन टू सर्कल्स इन अ प्लेन, दिस इज नॉट सिंपली कनेक्टेड। वही तुम वजह बताते हो कि यहाँ पे हर कर्व को तुम कंटिन्यूअसली डिफॉर्म नहीं कर सकते टू अ पॉइंट विद इन दैट रीजन, मत कर सकते हो, वो फंस जाएगा इधर, क्योंकि तुम्हें रीजन से बाहर नहीं जाना। जैसे मैं कह रहा था, तुम्हें स्फीयर से बाहर या टोर से बाहर नहीं, हम्म, है ना? तो जी सर। अब मैं वापस आऊंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे ऑयलर कैरेक्टरिस्टिक है ना? और है ये मान के हम चल रहे हैं, ये जो ये रीजन है सरफेस का, तो आइडिया ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई भी सरफेस है, उसका एक पोर्शन है, लेकिन वो पोर्शन जो है वो सिंपली कनेक्टेड है, ठीक है? सिंपली कनेक्टेड, ठीक। और इसका कर्वेचर फंक्शन जो है ना, इट वेरीज कंटिन्यूअस, इस रीजन का गाउसियन कर्वेचर, और इसके अराउंड जो एक कॉन्टूर है सी, इसका इसका जियोडेसिक कर्वेचर होगा। किसी भी कर्व जो सरफेस की होगी उसका एक जियोडेसिक कर्वेचर होता है। इनफैक्ट अगर जियोडेसिक कर्वेचर 0 है, देन वो कर्व जो है वो जियोडेसिक होगी, वो इंपॉर्टेंट है, इफ एंड ओनली। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये जो अराउंड ये कॉन्टूर है, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ सी जियोडेसिक, इसके जियोडेसिक कर्वेचर को in this thing over the contour, the line integral, plus मैं इस Gaussian curvature को इंटीग्रेट करता हूँ over this region, right? Whatever it S is, then this is equal to 2 pi into Euler characteristic, right? Of this region, इसकी 2 pi into Euler characteristic of this region S, plus I think sum of the exterior angles के minus sum of the exterior angle. Of course, this could be a triangle, है ना? तब sum of exterior angles क्या होगा, है ना? अगर हम इसको लेंगे तो you will have sum of exterior angles होगा 180, क्योंकि इसका exterior angle ये होगा, ये इसका यहाँ पे, इसके 3 exterior angles हैं, और triangle में इसी तरह से polygon में sum of exterior, उसके लिए एक formula भी है, sum of exterior angles, मुझे याद नहीं, whatever that is, तो वो sum of exterior angles तुम्हें subtract करना शुरू होगा। अब देखो ना, इसमें कितना कुछ है। There is something related to topology, which basically is our generalization of continuity. Then there is about surfaces, which is something generalization of what we call differentiability, maybe, and the system, the structure that we would need to do differentiability in a more generalized way. So curvature, something to do with the surfaces. सो टोपोलॉजी का मतलब बहुत सारी चीजें इसमें जो आपस में रिलेटेड है, इसीलिए ये एक मेजर थ्योरम है गाउस-पोलिन थ्योरम। आई एनकरेज यू टू स्टडी इट फर्दर, बुक्स से इसको ना भी समझ आए फिर भी कर लो, ठीक है? क्योंकि अगर कोई ये मान के चले मुझे समझ नहीं आया,
तो सच्चाई तो ये है कि पहली बार में किसी को समझ नहीं आता, फिर तो दूसरा अटेम्प्ट करना कर रहे तो फिर तो कोई कुछ समझे ही नहीं, है ना? जी। तो इसलिए अगर पहले अटेम्प्ट पे कोई चीज समझ ना आए तो अगर सभी उसी वक्त काम बंद कर दे ना, तो ये सारी साइंस मैथमेटिक्स हमारे सामने इनमें से कुछ भी नहीं होगा। ठीक है ना? ये उन्हीं से आती है जो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 10वां, 50वां, 100वां अटेम्प्ट करते हैं। थॉमस एडिसन ने पता है कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया था वो इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने के लिए? उसके पहले 100-150 बार वो फेल हो, to find the right material for the filament। तो उसे किसी ने कहा तुम तो 100 बार नाकाम हो गए। उसने बोला नहीं, मुझे 100 बार मुझे पता चला दिस विल नॉट वर्क। मतलब वो तो इंफॉर्मेशन है ना, इट्स नॉट अ फेलियर। अगर आप किसी चीज को अटेम्प्ट करते हो और वो नहीं होता तो दैट्स नॉट फेलियर। आपको ये पता चला कि ऐसे काम नहीं चलेगा, मुझे कुछ और करना है, जी सर। दैट्स अ गेन, है ना? तो देयरफॉर अगर तुम्हें ये पहली बार में समझना आए, नो इश्यूज। now what I want to do, now before going any further, actually इसका हम कर सकते हैं what we call yes, implications of Gauss-Bonnet theorem for the geodesic triangle on reoriented surface। let me write down, तो इसकी implications क्या है? implications of Gauss-Bonnet theorem, एक्चुअली हमारे सिलेबस में लिखा है कि वो एक implication वो ये कि the sum of angles of a triangle, of a geodesic triangle, Gauss-Bonnet theorem, तो हम वो वाली implication कर देते हैं। So let, yeah, you know, for geodesic triangles, geodesic triangle means, यानी अगर मैं स्फीयर की बात कर रहा हूँ, मेरे कहने का मतलब है मैं एक जियोडेसिक डालूंगा यानी एक ग्रेड सर्कल, दूसरा जियोडेसिक यानी दूसरा ग्रेड सर्कल, राइट? फिर तीसरा जियोडेसिक यानी तीसरा ग्रेड सर्कल, पता नहीं मैंने सही से डाला, तो एक ट्रायंगल बनेगा ना उनमें से। सो दिस इज अ जियोडेसिक ट्रायंगल एंड ऑफ कोर्स प्लेन पे वो होगा नॉर्मल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे जियोडेसिक जो है वो स्ट्रेट लाइन है। और अगर कोई दूसरी किस्म की सरफेस होगी वहां जैसे जैसे जियोडेसिक होगी इस तरह की तीसरी ऐसी, तो वो एक ट्रायंगल बनेगा वहां पे, जियोडेसिक ट्रायंगल। सो व्हाट वी डू, so let T be a geodesic triangle, geodesic triangle on an or in an oriented surface, in an oriented surface। oriented surface means हमने एक्चुअली इसको थोड़ा डिस्कस करना चाहिए था, ओरिएंटेबल एंड नॉन ओरिएंटेबल सर्फेसेस, लेकिन ये एक्चुअली क्लास में मजा आता है इसको करने में। क्यों? ओरिएंटेड सरफेस होती है जहां पे हम सरफेस नॉर्मल को कंटिन्यूअसली डिफाइन कर सके, there is no abrupt shift from one point to another। इसको सिखाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि नॉन ओरिएंटेबल सरफेस की एक एग्जांपल, तुमने मोबियस बैंड के बारे में सुना है? I cannot draw it, क्या करूं? ट्रांसफॉर्मेशन सुना है सर, पैन। हाँ, अच्छा, तो मैं चाहूंगा मोबियस बैंड पे बहुत कुछ होगा इंटरनेट में, या क्रॉस कैप, हालांकि ये हमारे जो है क्या बोलते हैं, हमारे इसका हिस्सा नहीं है, राइट? तो हमारे हमने जितनी भी सरफेसेस की वो थी ओरिएंटेड सरफेसेस, क्योंकि हम ये मानते हैं कि n is a continuous function, it doesn't change abruptly in its direction when we move from one point to another point of a surface। so लेकिन अगर तुम मोबियस बैंड का तरीका क्या है, अगर तुम्हारे पास एक शीट है, चलो मैं ऐसे बनाऊंगा, तुम घर पे बनाओ, एक कागज का टुकड़ा ले लो, राइट? ठीक है ना? जी। फिर इसको आपस में जोड़ो, लेकिन इस तरह से कि ये कोना इस कोने के साथ जुड़े और ये कोना इस कोने के साथ जुड़े, ट्विस्ट करना है तुम्हें इसका मतलब। तुम क्या करोगे, तुम इसको ऐसे करोगे, यहाँ से लाओगे, फिर थोड़ा ट्विस्ट करके ऐसे ना मुड़ के 180 घुमा के फिर यहाँ जोड़ोगे, तो वो कुछ ऐसे बन जाएगा। आई डोंट नो, मतलब
कैसा बनेगा, मतलब मुझे ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल है, मतलब ट्विस्ट करके, मेरे कहने का मतलब है इस तरह से हम दिखाते हैं, ये एरो ऐसे इस तरह से चिपकना चाहिए ना, ये तो तुम्हें एक रिंग सा मिलेगा ना। अब उसके साथ तुम बहुत ज्यादा खेल सकते हो, लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि इट इज एग्जाम्पल्स ऑफ ए वन साइडेड सर्फेस, यानी अगर तुम एक साइड से यहाँ जाओगे ना, तुम घूमते घूमते इसके पीछे पहुंच जाओ। देखो सिफेयर में ऐसे नहीं हो सकता ना, इट्स वन साइडेड से, ऐसा नहीं हो सकता तुम चलते 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 सिफेयर के अंदर पहुंच जाओ, हो सकता है मतलब ना उसकी दूसरे साइड पे आ जाओ, मत आ सकता, हो सकता है, ना लेकिन मूवीज बैंड में तुम चलते चलते बिल्कुल इसके पीछे आ जाओगे, यानी हाँ वो, सर, क्योंकि वहाँ पे वो टर्न अप करता है, हाँ वो इसीलिए है शायद, वो वहाँ पे टर्न अप होता है इसीलिए। हाँ, कि मतलब वो तुम देखो, मतलब वो देखने से ताल्लुक होता है ना, यू शुड डिस्कवर इट फॉर योरसेल्फ। अब मैं तुम्हें और भी चीजें हम कह सकता हूँ, तुम उसको बीच में से काट लो, देखो उसके दो हिस्से होते हैं कि नहीं, जैसे तुम्हारा रिबन होगा इस तरह से, अगर इसके दो रिबन कर रहे हैं ना हम, बीच में काटे तो दो में हो जाएगा ना डिवाइड। हाँ सर। तुम ऐसे ही मोबियस बैंड को भी कर सकते हो, फिर देखना क्या होगा। बहुत सारी चीजें हैं जो तुम्हें उसमें उसकी प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है कि इट्स नॉट एन ओरिएंटेड सरफेस, क्योंकि हम दूसरे साइड पे पहुंच गए, उसका मतलब एक बार हमारा नॉर्मल ऐसे था और घूमते घूमते वो अल्टीमेटली ऐसे हो गया, इसका मतलब एक जगह उसने पलटी मारी होगी ना, एक एज आया होगा जब वो घूमा होगा दूसरे साइड, यानी उसका जो नॉर्मल है इट कैन नॉट बी कंटिन्यूअसली, of course normal can be defined of tangent plane loop, लेकिन it cannot be defined continuously for the whole surface, so it's not an oriented या orientable surface. एक और है what we call cross cap. क्रॉस कैप का मतलब क्रॉस कैप मोबियस बैंड से भी मिल सकती है, you just have to join the boundary. Okay, but I would like you to, मतलब अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो वो सब चीजें तुम देखो, मैं यूजुअली क्लास में वो पेपर बनवाता हूँ सबसे, यहाँ ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है, बट नेवरदलेस इट डजंट, वो हमारे रिजल्ट का, हमारे जो है ना कोर्स के साथ उसका उतना कोई कनेक्शन है नहीं, जो हमें पढ़ना है, हमें जो भी पढ़नी है वो ओरिएंटेड सर्फेसेस है, नॉन ओरिएंटेबल सर्फेसेस आर वेरी इंटरेस्टिंग, लेकिन ओरिएंटेड सर्फेसेस पहले समझ में आनी चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है, हमारे कोर्स तो ओरिएंटेड सर्फेसेस पे है। ओके, what I was saying, so let T be a geodesic in an oriented surface S, right? Let theta 1, theta 2, theta 3 be the exterior angles of this triangle, of this geodesic triangle. Exterior angles of T. Let phi I होगा pi minus theta I running from 1 to 3. Of course, interior और exterior में ही relation है, the sum is pi, कोई भी polygon अगर हो, यानी अगर ये interior angle है तो exterior angle ये है, यानी उनका sum pi हो. So be the interior angles then by Gauss-Bonnet theorem, Gauss-Bonnet theorem क्या कहेगा, क्योंकि हम, तो पहली बात तो ये है कि हम कह रहे हैं कि इसकी जो आर्क है, इसका जो कॉन्टूर है वो जियोडेसिक्स है ना, तो ये जो ट्राइंगल है इसका जो कॉन्टूर है वो सी, उसकी जो ये है जियोडेसिक है, तो जियोडेसिक्स पे जियोडेसिक कर्वेचर 0 होता है, सो इफ इट इज अ जियोडेसिक ट्राइंगल तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है, बचेगी खाली ये दो टर्म, मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड पे एक, यानी बाय गॉस-बोनेट थ्योरम, since by Gauss-Bonnet theorem the integral over this region T, जो triangle है geodesic triangle, we do this d sigma is equal to 2 pi, वहां पे pi 2 pi था, 2 pi into Euler characteristic of that triangle, Euler characteristic of T minus summation theta I runs from 1 to 3, right? अब ट्राइंगल का जो ऑयलर कैरेक्टरिस्टिक वो ऑब्वियसली 1 है ना, एक एज एक, मतलब एक फेस 3 एजेस 3 वर्टिसेस 3 minus 3 plus 1, that's 1, so it is equal to 2 pi minus summation theta I runs from 1 to 3, ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ, उसका मतलब अब अगर मैं यहाँ इसको लिखूं 2 pi
minus pi minus summation phi I. I runs from 1 to 3. So that would be 2 pi. Pi minus pi to pi आ जाएगा plus summation I runs from 1 to 3 phi I, where phi I are the interior angles. तो हमें मिला geodesic triangle के लिए this relation should be true. यानी ये क्या मिला? गलत नहीं हो, pi minus 3 plus आना चाहिए. क्या किया? वहां पे माइनस था, इधर प्लस था. इस टाइम एक मिनट में कोई माइनस प्लस में कुछ गड़बड़ तो नहीं की? It's pi minus theta I. Oh yes. तो phi I तो it should be actually 3 pi है ना? ये 3 बार आया ना? It is pi minus theta 1 plus pi minus theta 2 plus pi minus 3 है ना? तो it should be actually 3 pi. तो it should be minus pi. तो अब हम पहुंचे सही जगह. Now अब देखो इससे क्या हमें पता चला. So I'm getting the integral over the triangle of the Gaussian curvature is equal to minus pi plus sum of interior angles of the geodesic triangle. यानी मेरे पास एक geodesic triangle है जो जिस किसी surface पे भी है उसका एक angle है phi 1, दूसरा है phi 2, तीसरा है phi 3. लेकिन अभी एक चीज जीरो आ सकता है. हाँ? वो सर जीरो आ सकता है. कौन सा? Sum of angles? मैंने कब कहा जीरो है? सर मैं बोल रहा हूँ माइनस पाई और प्लस पाई अगर हम बोलेंगे कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल होता है 180. हाँ, अगर वो पाई हुआ तो उसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड टर्म है ये जीरो हो जानी चाहिए, यानी कर्वेचर जीरो होना चाहिए, जो कि होता है प्लेन में, है ना? हाँ सर. यानी प्लेन में तो सच है. लेकिन सपोज गाउसियन कर्वेचर पॉजिटिव, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, चलो बेटर है मैं इसको ऐसे लिखता हूँ. समेशन आई रन फ्रॉम 3 phi I is equal to pi plus something. How about that? Now if k is 0 everywhere on the surface, तो क्या होना चाहिए? तो then I should have summation I runs from 1 to 3 phi I should be equal to pi, जैसा कि है ना, जैसा कि होता है प्लेन में. वहां पे कर्वेचर जीरो होता है ना, गॉसियन कर्वेचर जीरो होना. जी सर. Now if k is positive फिर क्या होना चाहिए? Then sum of angles I runs from 1 to 3 phi I should be strictly greater than pi, क्योंकि अगर k पॉजिटिव है on the surface, ठीक है ना, तो ये ना pi plus something, है ना? जी. Okay, and if k is negative everywhere on the surface, then sum of angles of the triangle should be less than pi. तो ये हम इससे conclude कर सकते हैं किस, with the help of these are the implications for the sum of angles of a geodesic triangle, Gauss-Bonnet theorem. और हम ये पता भी कर सकते हैं कैसे, क्योंकि हमें पता है किस जैसे स्फीयर का हर जगह पॉजिटिव है ना? यानी अगर तुम स्फीयर पे बनाओगे और मेजर करोगे ना वहां एंगल्स, जो कि मैं करवाता था बॉल पे क्लास में, जब मैं क्लास में पढ़ाता था, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 180. मतलब तुम चेक कर सकते हो और प्रूव भी करेंगे हम, ऑफ कोर्स मैं कह रहा हूँ तुम वेरीफाई कर सकते हो. और तुम्हें पता है वो जो हमने बनाया था सीडोस्फीयर, वहां पे हर जगह कर्वेचर नेगेटिव है. अगर तुम वैसी किसी सरफेस को बनाओगे तो तुम देखोगे जो वहां ट्रायंगल बनेगा ना, उसका जो सम ऑफ एंगल्स होगा वो ऐसे दिख भी रहा है लेस देन 180. क्योंकि अगर मैं सीधे लकीरों वाला ट्रायंगल बनाऊंगा उसका 180 है, तो यहाँ थोड़ा अंदर की तरफ जा रही है ना लकीरें, और यहाँ थोड़ा बल्ज हो रही है ना? तो सो दैट्स द implications of this Gauss-Bonnet theorem for the geodesic triangle on a surface. तो हमने बिल्कुल Gauss-Bonnet theorem को कुछ भी नहीं किया, राइट? इसके लिए पूरा हमें काफी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, बल्कि एक आध महीने उसका वो बैकग्राउंड है, और ये बहुत जगह पे यूज होता है. मतलब आई डोंट थिंक इवन आई नो द थिंग्स अबाउट Gauss-Bonnet theorem. आई डोंट नो a lot about it, लेकिन मतलब बेसिक्स मुझे पता, ठीक है?
So that was Gauss-Bonnet theorem. Now let's actually prove that. हालांकि ये हमारे शायद सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें कहूँ कितना ज्यादा या कितना कम, आइडिया है ना। अच्छा, अब मैंने बता दिया कि कितना ज्यादा होगा या कितना कम होगा, मतलब ये टर्म क्या है कि नहीं। हाँ सर। एक तो हुआ कि यहाँ जीरो, चलो पाई है, कर्वेचर जीरो है, तो ये इंटीग्रल जीरो हो जाएगा। पर इन दोनों का नहीं पता हमें। हाँ, क्या एग्जैक्ट वैल्यू के का? एग्जैक्ट वैल्यू हमें पता, मतलब नहीं, हम इसके बगैर किसी और तरीके से प्रूव कर सकते हैं कि मतलब हाउ मच एक्चुअली ये जो कितना बड़ा और कितना कम होगा, दैट विल बी एक्जैक्टली इक्वल टू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। कितनी अच्छी बात है, एक एरिया होगा ना उस जियोमेट्रिक ट्रायंगल, उतने ही हिसाब से ये कम या ज्यादा हो। यहाँ पर तो खैर जीरो होगा, नो इशू, मैं कह रहा हूँ इन दो जगहों पे। And let's prove that in the case of a sphere. The sphere is easy to handle. पर फिर हम उसको कैसे माप सकते हैं in terms of angle? अभी प्रूव एरिया करें। को एंगल है ना नंबर, हमें क्या है, एरिया इज अ नंबर, एंगल इज अ नंबर। एंगल रेडियंस में है तो इट्स अ रियल नंबर, एरिया इज अगेन रियल, है ना। ठीक सर। तो हम रेडियन मेजर नहीं, इसलिए हमने पाई लिखा, हमने नहीं लिखा 180। पाई मींस 3.141519 जो भी है, सो नॉट द डिग्रीज, पाई इज अ नंबर। ये तो बहुत पहले 11th-12th में हमें तुम्हें बताते हैं कि हाउ डू वी डिफाइन when we introduce trigonometric functions as circular functions. And for that we need the radian measure of the angle. Okay, तो मैं अब चाहूंगा हम इस स्फीयर पे ये साबित कर दें, क्योंकि हमने ये कर दिया। तो तुम चाहे तो घर पे स्फीयर होता है, ये बॉल है, उसमें 3 ग्रेट सर्कल्स डाल दो, तो एक फिर उसके एंगल्स मेजर करो। और जब मैं कह रहा हूँ एंगल्स मेजर करो, तो अगर ऐसा तुम्हें कुछ मिलेगा तो एंगल्स का मतलब है इनके टेंजेंट जो यहाँ पे पड़ते हैं ना, उनका एंगल मेजर करो। ये जो है ना, ये एंगल, ये एंगल, कर्व्स के दरमियान एंगल का मतलब होता है उनके जो टेंजेंट्स हैं इंटरसेक्शन, उनके बीच का एंगल क्या है। ओके, सो थ्योरम should I write it? Okay, अब ये भी मुश्किल है एक्चुअली, है ना, ये थोड़ा विजुअल है। ये जब मैं क्लास में बॉल पे दिखाता था तो इजी हो जाता था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। Let ABC be a triangle on the surface of a sphere. Be a triangle on the surface of the sphere of unit radius. So radius हम रखेंगे बिना परेशानी के। यूनिट रेडियस होज, मतलब हम ये बताना चाहते हैं कि इसके जो साइड्स हैं आर आर्क्स ऑफ ग्रेट सर्कल्स, नहीं दे आर पार्ट्स ऑफ ग्रेट सर्कल्स, क्योंकि तभी तो ये जियोमेट्रिक ट्रायंगल होगा ना। Then the area of the triangle, area of triangle ABC is equal to sum of the angles, that is angle A plus angle B plus angle C minus pi. उसका मतलब हुआ ना कि sum of the angles is pi plus the area of the triangle, है ना, वही हुआ ना, कोई सुन रहा है? जी जी सर। हाँ, तो इसका अगर मैंने ये प्रूव कर दिया, उसका मतलब जो सम ऑफ द एंगल्स है इट इज पाई प्लस द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो प्रूव क्या, थोड़ा सा इसको करना है। तो पहली बात तो ये है, देखो अगर मैं, अब ये है ना, ये विजुअल है, ये मेरे लिए दिखाना जरा मुश्किल है कि अगर मेरे पास एक ग्रेड सर्कल ये है, इस पे दिखाना जरा मुश्किल, दूसरा ग्रेड सर्कल ये है, ठीक है ना, और तीसरा ग्रेड सर्कल ये है,
ठीक है, तो ये मान लो मेरा ट्रायंगल है ए बी सी। अब ये इस पे मैं दिखा नहीं सकता एक्चुअली, जब मैं ये ड्रॉ करूंगा इस तरह से तो तुम्हें 8 ट्रायंगल्स मिलेंगे, मतलब पूरी सरफेस कवर हो जाएगी विद 8 ट्रायंगल्स ऑटोमेटिक। एक नहीं बनेगा, 8 बनेगा, मतलब इसके पीछे एक बनेगा, जैसे तुम देख ही रहे हो ना, यहाँ पे एक बनेगा, ये ना जो डॉटेड लाइंस है ना, अगर तुम सोचोगे यहाँ पे एक है, इसी तरह से यहाँ से एक है, मतलब आई कांट शो इट ऑन द स्क्रीन, राइट। लेकिन बॉल सभी के घर में होती है, तुम एक 3 ग्रेट सर्कल्स बना दो, पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स एक और चीज है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एंटीपिटल पॉइंट। एंटीपिटल पॉइंट होता है जो बिल्कुल इसके ऑपोजिट में होता है, राइट। तो यहाँ पे इसका ऑपोजिट में यहाँ पीछे एक पॉइंट होगा, इधर ए प्राइम। इसी तरह से बी का भी एक एंटीपोडल पॉइंट होगा बी, सी का भी एक एंटीपोडल पॉइंट होगा सी डैश, ठीक है ना। इस तरह से ये 6 पॉइंट्स मुझे मिलेंगे, और ये 6 पॉइंट्स उन 8 ट्रायंगल्स बनाएंगे। और मैं चाहूंगा तुम ये बॉल पे बनाओ, गुड एक्सरसाइज, सिंपल है, गुड सिंपल एक्सरसाइज। यानी मुझे ये जो पूरे 8 जियोडेसिक ट्रायंगल्स बनेंगे, वो पूरे स्फीयर के वो कवर करेंगे उसको, ठीक है। सो वही हम प्रूफ करेंगे। The 3 great circles of which the sides of the triangle are arcs A, B, C are arcs, divide sphere into 8 triangles. Divide sphere into 8 triangles. 8 triangles. अब ये मैं दिखाई नहीं, मैंने बोला ना, ये इस तरह से तुम बताना कौन से 8 होंगे, बता सकते हैं शायद 1 2, ये है ना, तीसरा यहाँ पे है, चौथा यहाँ पे है, पांचवा यहाँ पे है, छठा पीछे है, हाँ 8 यहाँ भी दिखते हैं मुझे, पता नहीं तुम्हें दिखेंगे कि नहीं, बट बॉल मैंने कहा ना सबके घर में। ओके, सो ओके, इन विच ओके, मैं लिखूं वो ट्रायंगल कौन कौन से होंगे, ये जरा दिक्कत है, ये मसला है भाई। द ग्रेट्स, ओके, ये जो ये फिगर है ना, इस फिगर को सामने रखते हुए मैं लिख रहा हूँ, इन विच ए डैश इज द एंटीपिरल point of A and so on. So on का मतलब B is the integral, B dash का integral point B है, जो ना इसको diametrically opposite है. Okay. Now denoting the area, now area of triangle ABC, मैं कोशिश करूँगा इसको यहाँ समझाने की, into area of triangle A dash BC is equal to twice the angle of A. अब ये important है इसमें. I hope I can just get it. तो आई गॉट ए बी सी, इसके साथ मैंने कौन सा ट्रायंगल जोड़ दिया, ए डैश जो यहाँ पे है, ए यहाँ पे है, ए डैश यहाँ पे है। सो मेरे कहने का मतलब है इट वुड जस्ट गिव मी अ सिचुएशन लाइक दिस, मतलब ये मेरा एंगल ए है, नीचे इसका पॉइंट है ए डैश, और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, और हम कह रहे हैं कि इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल का जो एरिया है वो है ट्वाइस एंगल ऑफ ए। उसकी वजह ये है, we have this formula for the area of a lune. Lune समझते हो, मतलब ये एरिया हमेशा ट्वाइस होता है, मतलब जो यहाँ एंगल का मेजर हो, अगर तुम वो होता है ना, संतरा होता है ना, संतरे को हम मतलब एक अगर स्फीयर माने
तो जो उसका एक टुकड़ा होता है वो एक ल्यून बन जाता है, और ये ल्यून का एरिया हमेशा होता है ट्वाइस द एंगल ऑफ ए, राइट, बिकॉज इट इज एक्चुअली एंगल ए डिवाइडेड बाय 2 पाई 4 पाई। देखो टोटल एरिया कितना है यूनिट स्फीयर का, टोटल एरिया जो टोटल सरफेस एरिया, लेट मी, चलो इसके लिए दूसरा पेज लेता हूँ, इस बात को समझना। मैं ये कह रहा हूँ अभी कि अगर मैं ये पोर्शन लेता हूँ स्फीयर का इस तरह का, जो ना ग्रेट सर्कल्स बनाते हैं, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, ये इसका एंटीपिरल पॉइंट है, ये ए डैश है, ये ए है, यहाँ पे कहीं पे बी है, यहाँ पे सी है। आई होप तुम घर पे जो बनाओगे तो इसको ठीक से देखोगे। अब अगर हम सोचे ये जो एंगल है ना अल्फा, जब ये पूरे को कवर करेगा, अगर ये अल्फा बराबर हो 2 पाई के, जब ये पूरा 2 पाई घूम जाएगा ये लकीर, तो ये पूरे के पूरे ये जो एंगल है ना, ये पूरे के पूरे सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर को कवर कर देगा। यानी जब अल्फा हो जाएगा 2 पाई, ये जो ल्यून है इसका एरिया हो जाएगा एरिया सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर व्हिच इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। चूंकि मैंने रेडियस 1 ली है तो वो 4 पाई। अब उसका मतलब हुआ कि जब 2 पाई अल्फा था तो ये 4 पाई आ जाता था, यानी उसका मतलब एक्चुअली इसका एरिया होना चाहिए कि ये एंगल 2 पाई का कितना प्रोपोर्शनल हिस्सा है, उसका अगर आधा है तो ये इसका आधा हो जाएगा, उसका 1/3 है तो उसका 1/3 हो जाएगा, यानी इट शुड बी अल्फा बाय 2 पाई इनटू 4 पाई। दिस इज द एरिया ऑफ द लून ऑफ एरिया ऑफ दिस रीजन है अल्फा बाय 2 पाई। दैट मींस क्योंकि अगर मैं इस अल्फा को पूरा घुमा दूं, आई विल गेट द होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर व्हिच इज 4 पाई। इसका अगर मैं आधा ही घुमा दूं तो इन जनरल होना चाहिए कि अल्फा का प्रोपोर्शन क्या है, 2 पाई का कितना हिस्सा है, दैट मींस अल्फा बाय 2 पाई व्हिच इज इक्वल टू अल्फा। यानी ये जो लून का एरिया है वो मिलना चाहिए 2a, एंगल 2a, जो यहाँ पे एंगल है ना ए, यहाँ पे चूंकि ये एंगल ए है, ये पॉइंट ए है तो मतलब ये एंगल ए है, दैट्स व्हाट वी मीन बाय एंगल ए। So once I'm done that, similarly you have area of triangle, और भी ट्रायंगल बनेंगे ए बी सी। अब मैं दूसरे साइड से यही करूंगा, प्लस एरिया ऑफ ए बी प्राइम सी। ये आराम से आ जाएगा जब तुम करोगे, दिस वुड बी जस्ट ट्वाइस एंगल बी। इसी तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए बी सी प्राइम, ये होना चाहिए ट्वाइस एंगल सी, बिकॉज ये ल्यून बन जाएंगे, तीन ल्यून्स आ जाएंगे इस पर। Adding these equations, अगर मैं इनको ऐड करूं, so you will get basically 3 times the same thing, है ना? You will have चलो 3 times area of triangle, adding these equations, you should have 3 times area of triangle ABC, 3 times area of triangle, मैं गलत लिख रहा हूँ, 3 times area of triangle ABC plus area of triangle A B prime C plus area of triangle A, चलो let me write it as A prime BC plus area of triangle ABC prime is equal to twice angle of A plus twice angle of B plus twice angle C, right? लेकिन इसको मैं ऐसे लिखना चाहूंगा, twice area of triangle ABC, इसको डिस्ट्रीब्यूट करूंगा इस तरह से, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, एक ABC को मैंने यहां लिया, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AB प्राइम C प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल A प्राइम BC, ये 4 को मैं लूंगा, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC प्राइम। अब अगेन ये फिगर पे 2D में स्क्रीन पे दिखाना जरा मुश्किल है जो मैं लिखने वाला हूँ,
is equal to twice angle A plus angle B plus angle C. नाउ ये जो ये पूरे का पूरा ये चार एंगल्स जो हैं ये बनाएंगे हेमिस्फीयर, ये आधा स्फीयर कवर करेंगे और वो तुम सिंपली उस पे देख सकते हो, मैं इस पे दिखा नहीं सकता स्क्रीन पे कि ये जो मैंने ट्रायंगल्स बनाए ना इस तरह से जब तुम ऑब्जेक्ट सर्कल्स का बनाओगे ये पूरे का पूरा आधा हेमिस्फीयर को करेंगे, तो इनका एरिया वही होगा जो होगा वो आधे हेमिस्फीयर का, और आधे हेमिस्फीयर का एरिया है total surface area of the sphere of radius 1 is 4 pi, so ये area पूरे का पूरा होगा, it would be twice area of triangle ABC plus या सीधे पहले लिखते हैं चलो. Now the triangles, let's call this equation 1. ABC, AB prime C, A prime BC, ABC prime together make a hemisphere. Hemi means semi, आधा. Therefore, area of triangle ABC plus area of triangle A prime BC plus area of triangle AB prime C plus area of triangle ABC prime is equal to 2 pi. Hence, from first, so what do we get? अगर हेमिस्फीयर है तो I should get twice, okay, I should get twice area of triangle ABC plus 2 pi. और दूसरी बात जो यहाँ पे आनी चाहिए, A prime BC prime, हाँ मैंने गलत लिखा है यहाँ पे, जस्ट अ मिनट, हेमिस्फीयर वाले मैंने ABC में थोड़ी गड़बड़ कर दी, ये जो हेमिस्फीयर है वो ये नहीं बनाते, वही मैंने बोला अगर मेरे पास बॉल होती और मैं क्लास में होता तो बिल्कुल इजी है, वहां पे आप देख सकते हो क्या मैं कह रहा हूँ. सो इट इज ABC, कौन कौन सा ट्रायंगल बनाएगा हेमिस्फीयर? ABC, AB prime C, right? And then I have ये नहीं है, okay. So what ABC, AB prime C, I hope I get them correct. Then I have AB prime C prime and ABC prime. देखो इसमें और इसमें डिफरेंट है, तो इसमें और इसमें ये डिफरेंट आ गया ना, क्योंकि ये तो आ गया ABC, देन है AB प्राइम C, ABC प्राइम भी है, लेकिन यहाँ पे A प्राइम BC की जगह है ABC प्राइम, एक यहाँ पे डिफरेंट है. सो देयरफॉर area of triangle ABC plus area of triangle AB prime क्या आया था, AB prime C plus area of triangle क्या हुआ इसको, A B prime C prime plus area of ABC prime is equal to 2 pi. क्योंकि ये हेमिस्फीयर है, ये तुम उस फिगर पे देख सकते हो जो तुम, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है मुझे बनाना, बट इट्स क्लियर वंस हमारे पास बॉल हो तो. So let's call it equation second. Finally, अब एक important बात हम करने वाले हैं. Since the map, since mapping each point to its antipodal point is an isometry. मेरे कहने का मतलब है कि अगर तुम्हारे पास कोई स्फीयर है
यहाँ का पॉइंट इधर है, यहाँ तुमने एक आर्क ली, और अगर तुम यहाँ पे इसके एंटीपिरल पॉइंट्स दो देखोगे जो ना बिल्कुल इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट होंगे, इसकी भी और इसकी भी, ये लेंथ और ये लेंथ सेम होनी चाहिए. दैट्स इजी टू वेरीफाई एंड इवन टू प्रूव कि when we send a point to its antipiral point, it's an isometry. Now you can just, मतलब why don't home assignment, मैं देखूंगा तुम कैसे करोगे, हिंट दे देता हूँ. You just पैरामीटराइज द स्फीयर, फिर देखो एंटीपिरल पॉइंट, अगर यहाँ ये पॉइंट है तो इसके एंटीपिरल पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, अकॉर्डिंगली तुम दिखा सकते हो वो एक आइसोमेट्री है. इट प्रिजर्व्स द डिस्टेंस. एनीवे, सो देयरफॉर आई कैन से हेंस आइसोमेट्री है तो हेंस दे आर इक्वल एरिया, यानी जो एरिया वो कवर करेंगे वो भी सेम होगा. सो व्हिच इंप्लाइज दैट देयरफॉर एरिया of triangle A-BC must be the same as area of the triangle. इसका इंटीग्रल पॉइंट A है, B प्राइम C प्राइम, बस इतना ही हमें करना. तो इसकी जगह मैं अब एरिया ये लिख सकता हूँ. Hence from second हमारा काम हो गया. Area of triangle ABC plus area of triangle AB prime C plus area of triangle A prime BC plus area of triangle ABC prime is equal to 2 pi. Substituting in first, we get, what do we get? We will get twice area of triangle ABC plus 2 pi is equal to twice angle A plus angle B plus angle C, which implies that जो हमें चाहिए area of triangle ABC plus pi is equal to sum of the angles. ये जो sum of angles हैं वो pi से ज्यादा है of course, और कितना ज्यादा है, कितना उस triangle का area. So let me end it here. I hope तुम सच में वो मोबियस बैंड के साथ भी थोड़ा बहुत घर पे खेलोगे और बॉल के साथ भी, और देखोगे क्या जो मैंने कहा वो सही आता है, आना चाहिए. क्योंकि ये स्क्रीन पे थोड़ा बॉल में पीछे उसके जो पॉइंट्स है, ए का एंटीपिडल पॉइंट दिखाना मुश्किल है, और फिर उन 6 जो 8 ट्रायंगल्स हैं जो क्लियरली बनते हैं उनको एक एक करके दिखाना फ्लैट स्क्रीन पे मुश्किल है. सो लेट्स लीव इट हियर.